We know, as I have already told you, what is attribute. Attribute is the column. So let's say if we have this table, in this table, what this is a table, right? So we have rows here, and these are the columns. So a1, a2, a3 are the attributes. Like as I've told you, if I take car, then the car name, then the car speed, okay, and car color, etc. And if I take any particular row, that will be called as tuple. Now, if I talk about another important term, that is domain. What is domain? Domain is set of values, right? So every particular attribute will be having some set of domain, right? And there is one more important term, that is null value. So it means not present in the domain, but still they can be used as attribute value for the tuples. So it may happen that a particular tuple may not have some value. So for that, we will put null. Okay. Another thing is, we generally assume that the domain is finite, right? Then other term is relational schema. So students are generally confused in this term. So what is relational schema? The heading of the table. So let's say if I take this example here, I have not filled the entries in the table, just defined a schema. It means it is having these attributes A, B, C, D, E, and the name of the table is R. So I can define it like this. R is the name of the table. In brackets, we are putting the attributes A, B, C, D, E. Every attribute is associated with some domain. So as you can see this is the name of the table R, and these are the attributes of the table. There are 5 attributes, and every particular attribute is having some domain value. So the domain associated with A is D1, with B is D2, and similarly D3, D4, and D5 for C, D, E. Fine. Now, 2 or more attributes can have the same domain, but then their attributes names will be different. Okay. So what it is saying, that the domain value may be same, but the attribute name should be different, and that we will understand with later examples. Now, sometimes there can be a question where you have to actually distinguish the difference between degree of a relation, right? And or intension and extension. So students are generally get confused. So do revise this at the last moment of time. So degree of relation means number of attributes in the relation. So likewise, we have discussed here in the previous example. As you can see here, in this table, there are, let's say, 1, 2, 3. I have not defined the other attributes, but 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 attributes are there, which is defining that particular entity. So what is degree? Degree of a relation is always the number of attributes in the relation. Fine. Another important term is intension. Intention means relational schema, or you can say heading of the table. Just now we have studied relational schema can also be called as intention. And what is extension? Extension is the table itself. Whatever entries are there in the given table is called as extension. Now, important point to be noted. In a relation, no two tuples can have the same value in all the attributes. No duplicacy is allowed. Like, for example, you can see here, this is a given table having serial number, class, and phone as the attributes. And there is one tuple. As I have told you, what is tuple? A row. So I have picked one of the tuple A. Its value is A1 92789. Similarly, after some entries, again there is the same row value. The same tuple value is there, A1 92789. So as you can see, the same tuples are there. There is duplicacy has arisen here, which is not allowed in DBMS. And the why we are studying DBMS, the only purpose of DBMS is we have to, just like operating system, we have studied management techniques of handling your memory, and then process CPU and everything. Here also, the thing is, we have to manage the data, and if there will be a lot of duplication in the database, then there will be a lot of storage space required, and also it will not be efficient because the size of the database will increase and it will give rise to slow access. Okay, so we have to make sure that we have to remove the duplicacy present in the table. In case of normalization also, we have studied that it give rise to redundancy. So we have to remove the redundancy. Okay, so this is not allowed here. Now, just now we discussed about the null concept. Now let's understand it in detail. See, some rows might not have some value, just like
Let's say if I take phone number, a student might not have a phone number. So this is one of the case when the student is not having the phone number, then obviously you need to fill some null entry over there. So there are two exceptions, like sometimes we don't have the value at all and sometimes the given value is not applicable. Let's understand this. One example, we have understood that phone number entry is given. We have to fill this attribute in the table, but there is no phone number, so you will not provide any phone number there. Another example is student. Generally you see that whenever you fill any online form, there are three categories: first name, middle name and last name. So generally middle name is not there in most of the cases, right? So there that value will be what? Null. Fine. So here a student is not having middle name completely, so middle is not applicable to the student. So here the null, here we are going to store null because that is not applicable, and the previous case the value was not there. So phone number is applicable but student is not having the phone number. So these are the two type of cases. So there can be two conditions when null value will be put in the table. One, when it is not applicable. Another one is when it is unknown. Okay. Now this topic is not required here, so I'm skipping this. This is the part of the keys that we will study in another lecture. Now, directly coming to the different operations of relational algebra, you know that we have this symbol pi. What does it mean? Pi means projection, and projection means we are selecting a particular column. Fine. Another important symbol is sigma, and this means selection. And in this, we are going to select the rows. So you must be knowing all these important terms, but this is a revision, last minute revision for you. Now, another symbol is this cross, which means cross product. U means union. Hyphen means set difference. And this row means rename. So relational algebra expression. Let's understand that we have another operation, that is this intersection operation. And if I'm saying A intersection B, it can be also written as A minus, in bracket, A minus B. So if you will make the Venn diagram for this, you will understand it. Now we have another symbol. This is the symbol which is pointing to join, and this symbol depicts division, right? So till now what we studied was just the symbols, right? All these symbols. Let's make a quick revision. This is projection for horizontal selection. For vertical selection. This is sigma, which is called as selection for selecting the rows, that is horizontal selection. Then we had cross product, union, set difference and row. And then we had intersection, which can be also written like this. This is join and this is division. Now let's understand every single operation in detail. The first operation is selection, which is represented by this sigma symbol, and it is used for horizontal partitioning, right? So selection operation is used to select a subset of tuples or rows. Tuples are also called as rows. So if this is the given table, we are going to particularly, select some rows, one row or more than one rows. So this is called as horizontal partitioning. So this is the given example. So here the name of the table is emp, and the attributes are e number, e name, DN number, and salary. So what we are trying to, so I can simply write it employee, and in brackets I will write the attributes. So these are the 4 attributes which are separated by comma and written in brackets. Now, if you want to, use this operation, how you are going to use it? Select all the employees whose department number is 10. So simply you are going to write this, because you have to select all the employees. It is directly, conveying the meaning that we are focusing on selecting the number of rows. And for rows, we have to use sigma operation, this operation, right? Selection operation. So I have written this selection operation, and I am writing D number, because you know that D number is department number. Here I have not written the meaning of all this, but in exam it will be clearly mentioned that E number is employee name number, E name is employee name, D number is department number. Fine.
So how can you write it? Just by mentioning that the department number should be 10 in the given table, and the name of the table is emp. So it is going to pick some horizontally, it will pick some rows where the department number will be 10. Now another query is, select all the employees whose salary is greater than 50,000. So again, here in this part, we are always going to write some condition. And generally, we have relational operators used here. So here you are writing salary should be greater than 50,000. In which table? Emp table. In brackets, you are going to write this. So once you practice, 10 to 15 queries, it will be very easy to for you to understand what is the meaning of it. Another query: select all the employees who are from department equal to 10 and whose salary is greater than 50,000. So basically what we want is, we want all the employees whose department number is 10, and along with that their salary should also be greater than 50,000. So here you can see that this department number is, so means there will be two queries will be used here. So either you write it inside or outside, it will not create any issue, because this particular operation, selection operation, is commutative in nature. So as you know that either you write a dot b or b dot a, same, or the thing is same. Fine. So I'm using this query here where I'm writing d number should be equal to 10, and inside again I'm using the same selection operator, and I'm writing salary should be greater than 50,000. So this inner query will run first, and it will select all the employees which are having salary greater than 50,000. So let's say there are 10 rows out of the 100 rows in the given table. Now I will apply this condition, and let's say the people who are having department number 10, out of this 50 people, right? Let's say 100 people are there, and whose salary is greater than 50,000 is 50 people. And if I apply this condition, then the number of people are 20. So 20 will be selected, right? Similarly, if I'm using this, inside I'm writing this. So let's say department number is equal to 10. So let's say if there are some employees whose department number is 10. So there can be any. It's not the case that it will be 20, because here I have selected only those particular employees जिनकी सैलरी क्या थी 50,000 से ज्यादा थी, तो वही सेलेक्ट होके आएंगे और उसके ऊपर ये वाला क्वेरी यूज होगा. लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो अंडर केस है इसमें भी 20 सेलेक्ट होंगे, 20 से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये रूल नहीं लगाया गया है कि सैलरी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए. ये रूल यहाँ अंदर लग गया था, उसके बाद ये लगा था. तो लेकिन जब ये हम लगा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जब हमने डी नंबर इज इक्वल टू 10 लगाया, हो सकता है 30 हो या 40 हो, कुछ भी हो सकता है, 60 भी हो सकते हैं. और उसके बाद जब हम इसमें 50,000 लगाएंगे ना, सैलरी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए उन पर्टिकुलर रोज पे, तो वो इक्वल आ जाएगी और दोनों में ही सेम टपल्स आएंगे. ठीक है. सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट सेलेक्ट ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बहुत आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. आपको सिंपल एक टेबल लेना है, उसमें कुछ एंट्रीज लेनी है, और आप दोनों कंडीशन लगाकर जब चेक करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा. सो अगर ऐसा हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिलेक्ट ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट? सो as we have used two operations here, one is greater than and another is equal assignment operator, and we have merged them with the help of another operation, that is AND. So this is called as cascading. Fine. So it is saying that the number this R, the number of rows in this R is always greater than equal to whatever condition you are applying on R. ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो आपका ओवरऑल टेबल है उसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगी या तो वो बराबर होंगी कंडीशन लगाने के बाद. हो सकता है कि हमने ऐसी कंडीशन लगाई जिससे आपका टेबल का जो नंबर ऑफ रोज आए ना वो एग्जैक्टली सिमिलर आए जो ऑलरेडी नंबर ऑफ रोज थे. ठीक है. बट अब जैसे हमने इस वाले पर्टिकुलर केस में देखा था, पिछले वाले केस में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस केस में 20 एलिमेंट्स आए थे, राइट? सिलेक्ट होने के बाद 20 रोज आ गए थे, तो आउट ऑफ 100 हमारे 20 रोज सिलेक्ट हुए. तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ये लेस हो सकती है. जो रो जैसे हमारे टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, 100 थे, और जब कंडीशन लगाने के बाद कितना है 20. तो जब भी हम किसी टेबल के ऊपर, रिलेशन के ऊपर कंडीशन लगाते हैं तो हो सकता है वो कंडीशन ऐसी हो कि हमारा एज इट इज पूरा टेबल आ जाए, और हो सकता है ऐसा हो कि कुछ पर्टिकुलर रोज ही आए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एंट्री सेलेक्ट ना हो. तो ये बताना चाह रहा है कि
ये जो कंडीशन है, ऐसा हो सकता है हम लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा आर, मतलब नंबर ऑफ रोज जितने आपके ओरिजिनल टेबल में थे वही आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम 0 है, यानी कि कोई भी वैल्यू सेलेक्ट ना हो। सो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आ सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि कैसे होगा ये। इसके लिए भी आप सिंपली एग्जाम्पल लेके इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तो रिलेशनल अलजेब्रा में ये छोटे छोटे जो टेक्निकल टर्म्स हैं या मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग है, इसको आपको समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल तो आप बहुत अच्छे से खुद ही लेकर समझा सकते हो, ठीक है। चलिए, सो सेलेक्ट वर्क्स अपॉन ओनली वन टपल एट अ टाइम। तो ये कहना चाह रहा है कि जो सेलेक्ट ऑपरेशन है वो एक टाइम पे एक ही टपल पे काम करता है। इसको और अच्छे से समझते हैं हम। तो जो सिलेक्ट ऑपरेटर हमने लगाया, सिलेक्शन ऑपरेटर, इसमें हमने एक कंडीशन यूज की है, सिलेक्शन कंडीशन, जो अभी तक हमने लगाई थी ग्रेटर देन या असाइनमेंट कंडीशन थी, वो किस पर लगाई, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो अब जब हमने इस पे जो कंडीशन लगाई, ये एक तरह की बूलियन एक्सप्रेशन होती है, और ये जो आ रही है हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, आप लिख सकते हो एट्रीब्यूट का नेम होगा और या कोई कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने वहां पे क्या लिखा था, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो सैलरी यहाँ पे क्या था, एट्रीब्यूट का नाम था। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या था, ग्रेटर, और कांस्टेंट क्या था, 50,000। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कहे कि एक टपल की जो वैल्यू है दूसरे टपल की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, या उसकी ग्रेटर होनी चाहिए, उससे लेस होनी चाहिए। तो दोनों एट्रीब्यूट्स के नेम भी गिवन हो सकते हैं। तो दीज आर द टू वेज ऑफ राइटिंग the condition in select, right? चलिए, ये I hope selection operation is very clear. Now let's understand projection. Now in projection, this projection operation is denoted by pi, right? And it is used for vertical partitioning. So basically some of the columns will be selected after applying this particular operation. तो आप देख सकते हो जैसे आपके पास एक गिवन टेबल है, इसमें से जब आप कोई कंडीशन लगाएंगे तो हो सकता है आपका एक पर्टिकुलर रो सेलेक्ट हो, या एक से ज्यादा हो सकता है। वो हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। या आपके पास एक गिवन टेबल है आर, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी, और 3 रोज है हमारे 1 2 3, जैसे इसमें वैल्यूज रखी है 1 A B C। ये एक पर्टिकुलर टपल है, इस तरह से बहुत 3 टपल्स है हमारे यहाँ पे टेबल में। अब इस टेबल में इसने कंडीशन लगाया है पाई, कंडीशन क्या है, ए। इसने किस कॉलम, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिकली जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें चाहिए, एट्रीब्यूट्स जो चाहिए हमें। तो मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया ए और रिलेशन का नाम रखा आर अंदर। तो ये इट विल सिलेक्ट ओनली ए कॉलम। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप अगर ए बी लिखोगे तो ये दोनों के दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा और उनके पूरे कॉलम को ये डिस्प्ले करेगा। तो ये पाई जो होता है सिंबल, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, इसमें जब आप ये लिखते हो ना एट्रीब्यूट्स, तो ये बताता है डिग्री ऑफ द आउटपुट रिलेशन, राइट। ये आपकी आउटपुट रिलेशन की डिग्री बता रहा है। अगर मैं इस ओरिजिनल टेबल की बात करूं तो इस टेबल की डिग्री है 4, बट अगर मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ तो इस टेबल की डिग्री है 1, और क्योंकि इसमें एक ही पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट हुआ है, एट्रीब्यूट सिलेक्ट हुआ है। और इस सिलेक्टेड आउटपुट टेबल की डिग्री है 2, क्योंकि इसमें 2 टपल्स हैं। नाउ अनदर थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट दिस प्रोजेक्शन ऑपरेशन। आप लिखेंगे पहले प्रोजेक्शन ऑपरेशन डिनोटेड बाय पाई, और यहाँ पे आप लिखेंगे एट्रीब्यूट लिस्ट, यानी कि कौन कौन से वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आप चाहते हो कि फाइनली सिलेक्ट हो, कौन से वो कॉलम्स हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन का नाम, दैट इज आर। सो आपने क्या लिखा है, जो आपकी जो एट्रीब्यूट लिस्ट है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू आर। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, इस केस में हमारा जो ओरिजिनल टेबल था उसमें कितने टपल्स थे, 4 थे। और यहाँ पे जब मैंने ए लिखा तो मैंने सिर्फ एक ही टपल सिलेक्ट किया, तो जो ये मेरे पास आउटपुट में एट्रीब्यूट आया ये क्या है, लेस है एज ऑफ द ओरिजिनल टेबल, क्योंकि ओरिजिनल टेबल में 4 थे। अब यहाँ पे भी हमने 2 टपल्स को सिलेक्ट, 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, और ये भी क्या है, लेसर देन द ओरिजिनल टेबल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो आप एट्रीब्यूट लिस्ट सेलेक्ट करोगे वो हो सकता है जो आपने ओरिजिनल टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स उनसे कम हो, और हो सकता है बराबर भी हो, क्योंकि अगर हम सारे के सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहते तो पूरा का पूरा टेबल कंप्लीटली आ जाएगा, ठीक है। और आर क्या है, यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। अब एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो आपका एट्रीब्यूट है ना प्रोजेक्शन, ये क्या करता है, डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है। बट जो आपका सिलेक्शन ऑपरेटर था
वो डुप्लीकेसी रिमूव नहीं करता, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। तो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपकी सिलेक्शन ऑपरेटर और जो ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हो कि वो जो सिलेक्शन ऑपरेशन है वो डुप्लीकेसी रिमूव नहीं करता, बट प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो है डुप्लीकेसी रिमूव कर देता है। उसके अंदर टपल सेलेक्ट होता है, इसके अंदर कॉलम सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये कम्यूटेटिव नहीं होता। आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि सिलेक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, बट प्रोजेक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। सो अ रिलेशन इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ सेट। हम एक रिलेशन को सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेट जब आप लिखते हो, आप कभी भी सेट में ऐसे नहीं लिखोगे 1 1 2 2 2 3 3 3, मीन्स वी आर नॉट राइटिंग जो भी हमारे सेट में वैल्यूज हैं तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, हम सिंपली उस एंटिटी को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लेट्स से बहुत सारे फ्रूट्स घर में लेके आ रहे हो, आपने एप्पल लाया, मैंगो लाया, बनाना लाया, और आप 10 एप्पल्स लाए, 15 मैंगोज लेकर आए, और आप लेट्स से 5 बनानास लेकर आए। तो आप, अगर मैं ये पूछूंगी आपसे कि आप क्या कितने मतलब आप कौन से फ्रूट्स लेकर आए, तो आप सिर्फ फ्रूट का नाम बताओगे, उसकी क्वांटिटी नहीं बताओगे। तो सेट में आप सिर्फ क्या करेंगे, आप सिर्फ उसका नाम बताएंगे, ना कि आप उसकी क्वांटिटी बताएंगे। तो रेपिटेशन नहीं अलाउड होगा। सो आउटपुट ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं इस नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। आप देख सकते हो ये आपका एक रिलेशन है जिसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी सी, 3 एट्रीब्यूट्स है और ये इनकी टप्पल वैल्यूज है, और इसमें जो कैंडिडेट की है वो हमारी ए बी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पाई ए लगाया। पाई ए करूंगी तो ऑब्वियसली ये वाला पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ए कॉलम। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इस कॉलम में 1 1 2 बार रिपीट हो रहा था और 2 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये डुप्लीकेसी रिमूव कर देता है, इसलिए अब आंसर क्या आएगा, 1 and 2, दैट्स इट। जब आप बी सिलेक्ट करेंगे तो ए 2 बार है और बी भी 2 बार है, तो वो सिर्फ एक एक बार आएंगे क्योंकि डुप्लीकेसी रिमूव कर देगा ए बी। अब आप जब ए और बी सिलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा, तो इसमें आप देखेंगे कि चारों की चारों एंट्रीज आएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, दिस इज 1A and this is what 1B, so they are different. Similarly this is 2A and this is 2B, ये भी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि चारों के चारों टपल्स आपके आंसर में हैं। जब आप C सेलेक्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि C चारों बार रिपीट हो रहा है, तो लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार, तो ये इसमें कितने एट्रीब्यूट्स, सॉरी, इसमें C कितने बार आएगा, सिर्फ एक बार आएगा। तो ये आपने नोटिस किया होगा। और जो मैंने पहला आपको एग्जाम्पल कराया था उसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्या था ना, जब मैंने ए सेलेक्ट किया था तो 1 2 3 सारी यूनिक एंट्रीज थी, इसलिए ए 1 2 3 आया था, ठीक है। जब आपने ए और बी सेलेक्ट किया था ये यूनिक है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो एंट्रीज है वो भी यूनिक होंगी। तो आपने ये अच्छे से नोटिस किया होगा। चलिए, सो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट योर दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसको और डिटेल में हम समझेंगे। देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जो नंबर ऑफ ये आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे आपके रिलेशन में, वो क्या होंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट होके आएंगे। ये तो हमने बहुत अच्छे से अभी समझा है। मैंने आपको बताया अगर एक टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स है और अगर आप एक ही सेलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो लेस होगा, और अगर मतलब ये वाला साइड जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ ओरिजिनली जो आपके टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो हमेशा ही ग्रेटर होंगे कंडीशन जब आप लगाओगे, और इक्वल कब होंगे, जब आप सारे के सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, देन पाई एट्रीब्यूट इज इक्वल टू आर इज सुपर की। अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ से कोई भी लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे, ये हमेशा सुपर की का पार्ट जरूर होंगे, ठीक है, अगर ये इक्वल है। क्योंकि देखिए, अगर सारा का सारा टेबल सेलेक्ट कर लिया, सारा टेबल मतलब सारे टेबल के एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया आपने, तो होगा क्या, यानी कि जैसे अगर इस एग्जांपल की बात करें, इसमें अगर आप ए बी सी तीनों को ही सेलेक्ट कर लोगे, तो अगर हम सारे एट्रीब्यूट्स को ही ले लेते हैं तो वो कौन सी की होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सुपर की होती है। और कैंडिडेट क्या होती है, मिनिमल एट्रीब्यूट्स अगर हम यूज करके पूरे टेबल को डिफाइन कर सके, वो आपकी कैंडिडेट की होती है। इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें मैं आपको सारी कैंडिडेट की, सारी टाइप ऑफ की, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की के बीच में बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू डिफरेंस बताऊंगी। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपके टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स और तीनों के तीनों आपने सेलेक्ट कर लिए,
तो ये सुपर की होगी, ठीक है, क्योंकि आपने सब सेलेक्ट कर लिए और आपने जैसे अभी यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, ए बी है, यानी कि 2 टपल से आप पूरे टेबल को डिफाइन कर सकते हो, बट आप ले कितने रहे हो, तीनों के तीनों, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर की होगा, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर आपकी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो ओरिजिनल टेबल में है, लेट्स से 3 है, और जो आपने सारे के सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए, तो वो क्या होगा, अगर ये सुपर की है तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर आपके नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट्स है वो ग्रेटर देन है, तो ये मे और मे नॉट भी है सुपर की, हो सकता है सुपर की और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब ये आप एग्जाम्पल देखिए जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, और हमने देखा था सिलेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। देखिए इस टेबल, ये एक रिलेशन है जिसमें ए बी सी 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैंने पहले क्वेरी लगाया जिसमें मैंने ए को सिलेक्ट किया और उसके अंदर फिर से यही क्वेरी लगाया, प्रोजेक्शन ऑपरेशन ए बी सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले इनर मोस्ट क्वेरी रन होगी, जब इनर मोस्ट क्वेरी रन होगी तो हमारे टेबल में क्या क्या सिलेक्ट हुआ, ए और बी दोनों सेलेक्ट हुए, और उसके बाद जब ये रिजल्ट आया, जो ये अंदर वाला रिजल्ट क्या है, ये है ये रिजल्ट, और इस रिजल्ट के ऊपर जब मैंने क्या सिलेक्ट किया, ए, फिर से ए अप्लाई किया, तो क्या आया, सिर्फ और सिर्फ ए आया, यानी कि ए की एट्रीब्यूट सेलेक्ट हुआ। बट वैसे वर्सा अगर हम इसको करते हैं, मतलब दोनों को अंदर पोजीशन चेंज कर देते हैं, अब अंदर हम ए को सिलेक्ट कर रहे हैं और बाहर ए बी को, मतलब सिलेक्ट नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो अगर इसने अंदर ये वाली क्वेरी रन की तो यहाँ से सिर्फ ए की एट्रीब्यूट सेलेक्ट हुआ, ए, उसके बाद आप जब ए बी लगाओगे तो कैसे लगेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आपने एट्रीब्यूट फाइनली अंदर से तो एक निकाला है और आप अब 2 रिट्रीव करना चाहते हो, तो 2 रिट्रीव हो ही नहीं सकते हैं ना, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो वी कैन से दैट योर दिस प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेरी लगाएंगे तो ये जो बाहर जो आपने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए हैं और जो अंदर यूज किए, तो बाहर जितने भी एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट करोगे वो हमेशा या तो अंदर वाले एट्रीब्यूट के बराबर होंगे या उससे कम होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी, यहाँ 2 एट्रीब्यूट और यहाँ 1 है, ये गलत है, या तो यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट होता या यहाँ पे एटलीस्ट 2 होते या 2 से ज्यादा होते तो ही एप्लीकेबल होता। तो सबसेट कंडीशन इज नॉट मेंटेन्ड हियर, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। सी, आप आई होप इट इज क्लियर। जब आप एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे तो आप देख सकते हो कि आपको ना इवन ये भी एंट्रीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम लाइक दिस सब्जेक्टिव एग्जाम इज ऑल अबाउट योर अटेम्प्ट, कि आप पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करो, ये बहुत मैटर करता है कि आप सिर्फ थ्योरी लिख रहे हो या आप उसमें कोई एग्जाम्पल लेके उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल जो ये बताया क्या था कि यहाँ जो बाहर जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इनसाइड, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ तो वैसे ये फेल हो गया क्योंकि बाहर जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि हमने एक और चीज हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि अगर आपने दिस प्रोजेक्शन ऑपरेशन को यूज किया है, ठीक है, इसकी सब क्वेरी यूज किया है जिसके अंदर फिर से आपने प्रोजेक्शन यूज किया है, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो बाहर है दैट इज A2 और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो A1 अंदर है, तो जो बाहर वाले हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू A1। ये देखो ये थोड़ा वैसे वर्सा लिखा है, A2 शुड बी लेस देन इक्वल टू A1, तो यानी कि बाहर जो है ना वो कम होने चाहिए अंदर वाले से, या एटलीस्ट बराबर तो होनी चाहिए। दिस क्वेरी इज वैलिड ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। ओके, चलिए नाउ इन एसक्यूएल सेलेक्ट, और जब हम एसक्यूएल जब एक्चुअली पढ़ेंगे, ये एक अलग टॉपिक है, अभी हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बट एसक्यूएल में सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना। तो ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये आप बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। तो अगर आपने क्या लिखा है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज किया एक रिलेशन पे और आपने एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया है, और सिमिलरली आपने सेलेक्ट ऑपरेशन यूज किया है और उसमें आपने ए सेलेक्ट किया फ्रॉम आर, तो ये क्या है, ये सेलेक्ट ऑपरेशन अलग है एसक्यूएल वाला। तो यहाँ पे जब आप ऐसे रिलेशनल अलजेब्रा में लगाओगे तो यहाँ तो कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली इतने सारे एग्जांपल्स में बताया, बट जब एसक्यूएल में ऐसे यूज करोगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट एग्जिस्ट करेंगे और उनको हमें एलिमिनेट करना होगा उन डुप्लीकेट्स को, ठीक है। और उनको, क्योंकि एसक्यूएल में जब आप लिखोगे
तो ये डुप्लीकेट शो करेगा, और उस डुप्लीकेट को हटाने के लिए आपने बहुत अच्छे से एसक्यूएल पढ़ा होगा, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर, यानी कि जो भी आप ए में से जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे ना, मतलब जैसे ए में वैल्यू है 1 2 2 2 3 4 ऐसे करके, तो जो 2 बहुत बार रिपीट हुआ, दो इतनी बार रिपीट नहीं होगा, जो हम पहले देख चुके, जैसे सी 4 बार रिपीट था बट एक ही बार फाइनल आंसर में लिखा हुआ था, ठीक है। तो जब हम डिस्टिंक्ट लगा देंगे तब ये दोनों अब इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं थे, दिस इज नॉट इक्वल, बट जब सिलेक्ट में आप डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो अब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे और इसमें डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑपरेशन इज रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपका टेबल ऑलरेडी किसी नेम से है और आप उसको एक और रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये रिलेशन है, इसमें ABC एट्रीब्यूट्स है और X क्या है, एक कंडीशन है जो हमने इस टेबल पे लगाई है, वो कुछ भी हो सकती है। तो जैसे इसने क्या लिखा, आपने प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज किया और AB इस पे लगाया, AB यानी कि एट्रीब्यूट्स के हमारे A और B, और आपने इसके अंदर क्या करा, सिलेक्शन कंडीशन लगाई, जिस X कुछ भी हो सकता है, जैसे सैलरी ग्रेटर देन 50,000 जो हमने देखा था, या फिर हो सकता है कि डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, इस तरह की जो कंडीशन हमने पहले देखी थी, इस तरह की आप कोई भी कंडीशन यहाँ लगाएंगे रिलेशन के ऊपर, राइट। सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पररी टेबल। तो ये कैसे क्रिएट होगा, पहले अंदर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी जो क्या करेगी, ये वाली कंडीशन लगाएगी, तो एक टेम्पररी टेबल अंदर क्रिएट हो जाता है, वो ना आपके इंटरनली सिस्टम में काम करता है, हमें नहीं दिखता है, हमें तो फाइनल आउटपुट दिखता है, बट टेम्पररी वेरिएबल्स आपके सिस्टम में होते हैं, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा और DBMS में भी पढ़ेंगे कि इन टेम्पररी वेरिएबल्स जो होते हैं ना, इनके अंदर आपका जो सिस्टम है वो इंटरनली काम करता है और फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो यूजर को शो करता है। तो जब जो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो टेम्प में स्टोर होगा, क्योंकि देखिए जब आपने सेलेक्ट ऑपरेशन यहाँ लगाया है, तो अगर आपके टेबल में 10 रोज थी, हो सकता है कंडीशन लगाने के बाद सिर्फ 5 रोज रहेंगी, तो ये जो नया टेम्प टेबल बना है ना, टेम्पररी टेबल, टेम्पररी रिलेशन, इसके अंदर 5 रोज है, बट ओरिजिनल वाले के अंदर 10 थी, तो ये 5 रोज के ऊपर इसने क्या करा, ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगाया और A और B एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो रीनेम रिलेशन करते हुए कैसे करेंगे, हम इसे हम लिखेंगे रीनेम रिलेशन R to S, ऐसा हमें करना है, और एट्रीब्यूट्स ABC को भी हम चेंज करना चाहते हैं XYZ में, तो बहुत इजी है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो पहले टेबल था ना R, उसमें क्या किया था, उसमें ABC एट्रीब्यूट्स थे, और रीनेम होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो देखो अभी क्या लिखना चाह रहा है, R जो है हमारा ओरिजिनल टेबल है, और ये जो है रो ऑपरेशन, ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसमें हम क्या लिखेंगे, हम वो टेबल का नाम लिखेंगे जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मुझे R की जगह क्या यूज करना है, S, तो मैंने टेबल का नाम रख दिया S, और मैंने ABC को भी चेंज करना है, तो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया कॉलम के अंदर XYZ। तो इस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा, ये एक टेबल जनरेट करेगा जिसमें टेबल का नाम होगा S और उसके एट्रीब्यूट्स होंगे XYZ, ओके। रीनेम रिलेशन R to S बट द पैरामीटर्स रिमेन सेम। देखो इसने रिलेशन का नाम तो चेंज कर दिया है, बट रिलेशन का नाम भी चेंज कर दिया, आप देखोगे R से S हो गया, और उसके जो एट्रीब्यूट्स थे ABC वो भी चेंज होके, ये मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे आप देख ये XYZ होगा, सो दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ ABC नहीं आएगा, यहाँ XYZ आएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि ये रिलेशन जो है वो R से S तो हो गया, बट उसके पैरामीटर जो है वो सेम है, जो अंदर वैल्यूज है वो एग्जैक्टली सेम है। इफ ओनली द एट्रीब्यूट्स आर टू बी रिप्लेस्ड ABC इन R to XYZ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ठीक से लिखा है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास है लेट्स से बीटेक थर्ड सेमेस्टर, तो बीटेक थर्ड सेमेस्टर को अब मैंने सिंपली वैसे एक टेकी नेम दे दिया, लेट्स से आई एम सेइंग कोई नाम मैंने आपको ऐसे ही दे दिया कि सेक्शन ए इज रोनाल्डो, एंड दूसरे वाले को और किसी स्पोर्ट्स पर्सन के नेम से मैंने डिनोट कर दिया, तो वो क्लास तो लेकिन सेम ही रहेगी ना, बस नाम ही तो चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए, जैसे आप स्कूल में देखते थे हाउस नेम होता था, अगर आप हाउस नेम चेंज भी कर दोगे तो उसकी जो एंट्रीज है वो तो सेम रहेंगी, एक एग्जांपल है, बट अभी हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन द थ्योरी पार्ट। नाउ देयर आर डिफरेंट सेट ऑपरेशंस, हमने अभी मेजरली 2 ऑपरेशन करे हैं, सेट द सिलेक्शन ऑपरेशन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन, और अब हम सेट ऑपरेशंस करेंगे। सेट ऑपरेशन में वी हैव यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, एंड जब भी ये सेट ऑपरेशन हमें लगाने हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी अप्लाइड बिटवीन 2 रिलेशंस और टेबल्स, एंड both the tables should be compatible or
और शुड हैव टाइम कंपैटिबिलिटी। सो ये अगर सेट ऑपरेशंस आपके पास कभी भी आएंगे तो वो पूछेगा आपसे कि जो सेट ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए मिनिमम कंडीशन क्या होती है। मिनिमम कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका टेबल है वो कंपैटिबल होना चाहिए, टाइप कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और इसको हम डिटेल में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिग्री इन बोथ द टेबल शुड बी सेम। क्या मतलब है इस पर्टिकुलर टर्म को मैंने इतना जो हाईलाइट किया उसका क्या समझाने का मतलब है। उसका मतलब ये है, अगर आपके पास दो रिलेशंस है आर और क्यू, और आर रिलेशन के अंदर लेट से A1 A2 अप टू AN एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, और ऐसे ही क्यू रिलेशन के अंदर भी B1 B2 अप टू BN कुछ एट्रीब्यूट्स है, तो ये जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर में है और जो क्यू में है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर इसमें 10 एंट्रीज हैं आर में, 10 एट्रीब्यूट्स है, तो क्यू के अंदर भी 10 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। इस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही कंडीशन रिक्वायर्ड है, दूसरी कंडीशन क्या होगी वो ये है, द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट डोमेन शुड बी सेम, ठीक है। जैसे कि अगर ये नेम है, हो सकता है आपने यहाँ एम्प्लॉय नेम लिखा हो, यहाँ पे आपने स्टूडेंट नेम लिखा है, बट ये नेम्स ही होंगे, अदरवाइज इनकी मैपिंग नहीं होगी। तो ये जो आपकी जो यहाँ से मैपिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेलीफोन नंबर है तो ये भी टेलीफोन नंबर होगा 10 डिजिट का, ये भी 10 डिजिट का, अदरवाइज आप सेट ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर पाओगे। सो द फर्स्ट कंडीशन of the meaning of compatible और टाइम compatibility, टाइप compatibility means first condition is जो दोनों टेबल जिनके बीच में आप सेट ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन। और कौन कौन से सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। तो ये तीनों ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो जो दो रिलेशन लेट से आर और क्यू है उनके अंदर जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो सेम होने चाहिए, और दोनों एट्रीब्यूट जो है ना उनका डोमेन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो डोमेन की वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। So same domain, let's say if A1 in R is roll number, then B1 in Q should also be roll number. अगर A1 में R roll number है तो Q B1 में Q भी क्या होगा, रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो बात बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये A1 रोल नंबर है तो B1 भी रोल नंबर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये नेम्स है तो दोनों में नेम्स होंगे, फोन नंबर है तो दोनों में फोन नंबर होंगे। ये तीनों में अगर मान लो दोनों में ईमेल आईडी है तो दोनों में, इसमें ईमेल आईडी है तो इसमें भी ईमेल आईडी होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंपैटिबली इस पे ऑपरेशन नहीं लग पाएगा, ठीक है। सो द डोमेन नेम इन बोथ द रिलेशन कैन बी डिफरेंट बट डोमेन शुड बी सेम। देखा, अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो क्या था, हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हो और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हो, लेकिन है तो दोनों नेम ना, तो नेम से फर्क नहीं पड़ता, बट उनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जो डोमेन की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर नेम होगा तो A1 और B1 में सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे, अगर A2 फोन नंबर होगा तो ये भी 10 डिजिट का होगा, ये भी 10 डिजिट होगा, तो इसलिए इसकी जो डोमेन वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी। और अगर ये ईमेल आईडी होगी तो ऑब्वियसली ईमेल आईडी यूनिक होगी और उसमें @ सिंबल होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये एक ईमेल है कहीं, ठीक है। चलिए, अब अगर मैंने लिखा है R यूनियन S, तो हम लिख सकते हैं R is equal to A1, A2 up to AN. So what it is trying to say, output name will always be the same as the name of the first relation name and also the attribute name will be named accordingly. ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करनी है, जो ये बता रहा है कि अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, दो रिलेशंस हैं R एंड S, और उनका मुझे यूनियन करना है, तो अगर दोनों में अगर कंपैटिबिलिटी होगी, टाइप कंपैटिबिलिटी, यानी कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो R और S में सेम होंगे तभी ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। और डोमेन वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। तो जब ये लगेगा तो ऑब्वियसली हो सकता है ना, मैंने ये भी आपको कंडीशन बताई थी कि R में हो सकता है ये स्टूडेंट नेम हो और ये क्या हो, एम्प्लॉय नेम हो। तो एक्चुअली जो आपको फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कौन सा डोमेन, मतलब नेम कौन सा यूज होगा, एट्रीब्यूट नेम R का होगा या S का होगा। तो ये इसने यहाँ बता दिया है कि आउटपुट में हमेशा हम जो फर्स्ट टेबल है उसी का नाम प्रेफर करेंगे और उसी के जो एट्रीब्यूट नेम्स है वही यूज होंगे। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है। बट वी कैन चेंज द नेम ऑफ द आउटपुट रिलेशन टेबल एंड इट्स एट्रीब्यूट्स बाय रीनेम। बट लेकिन आपका मन नहीं है और आप उसे चेंज करना चाहते हो, आप बी वाला करना चाहते हो या कोई और करना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। जरूरी नहीं है आपको ये, जैसे पहला रिलेशन क्या था आर था तो आर के आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। आप एस के भी कर सकते हो, और अगर मान लो एस के नहीं करने तो आप कुछ और भी करना चाहते हो, कोई और नेम भी देना चाहते हो, वो भी आप फाइनली कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमें वैसे भी पता है, मैथमेटिक्स में, डिस्क्रीट मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, नॉर्मल मैथ्स में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि यूनियन ऑपरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है और एज वेल एज एसोसिएटिव भी होता है। तो अगर आप आर यूनियन एस लिखेंगे तो एस यूनियन आर भी इक्वल होगा, और आर यूनियन
एस यूनियन टी, तो अगर आप पहले एस यूनियन टी करते हो और उसके बाद आर के साथ यूनियन करते हो, ये सिमिलर होगा कि आप पहले आर यूनियन एस करेंगे और उसके बाद उसका यूनियन टी से करेंगे, तो ये दोनों सेम कंडीशन है। सिमिलरली आर यूनियन इंटरसेक्शन एस करें या एस इंटरसेक्शन आर करें, और सिमिलरली एसोसिएटिव भी अप्लीकेबल है। मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं प्लस एसोसिएटिव भी होते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है ये। बट जो आपका जो ये अभी हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे वो नहीं होगा, वो हम देखते हैं अभी। सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बोथ एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरे ऑपरेटर्स। इनको हम एन एरे ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, इट कैन बी अप्लाइड ऑन any number of relations and output still remains the same in all cases whatever may be the order। तो कह रहा है मान लो कितने भी आपके पास एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव में क्या होता है, आपके पास 2 टेबल्स होते हैं और एसोसिएटिव में 3 टेबल्स हैं। बट ये कह रहा है ये एन एरे है, यानी कि ये यूनियन और इंटरसेक्शन जो ऑपरेटर है ये आप क्या कर सकते हो, ये 2-3 नहीं, इनसे ज्यादा टेबल्स पे भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये आपको आउटपुट तब भी सेम देगा, ठीक है। बट जो आपका थर्ड ऑपरेशन था, सेट ऑपरेशन, सेट डिफरेंस, ये क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस सी। ये तो हमें वैसे भी नॉर्मली पता है। वैसे तो यहाँ पे ये माइनस थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम समझेंगे, बट जनरली आपको भी पता है माइनस में 2 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2। बट यहाँ ये क्योंकि सेट डिफरेंस है थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप आपने डिस्क्रीट मैथ में या 12th क्लास में भी सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और बी के अंदर है 1 और 2, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास रह जाएंगे 2 3 1 और देखो ए में क्या था 1 2 3 4 5 और बी में क्या है 1 और 2, तो ए में से 1 और 2 सब्ट्रैक्ट मतलब चले जाएंगे और बचेगा क्या 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगी, अब देखिए 1 2 3 4 5 था और यहाँ मैंने 1 2 लिखा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 माइनस ए में कितना था 1 2 3 4 5, तो जो पहली क्वांटिटी उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कम है, इसमें ज्यादा, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्लीकेट्स आर पॉसिबल इन यूनियन और नॉट, इंटरसेक्शन और नॉट, और डिफरेंस और नॉट। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे सेट ऑपरेशंस है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, क्या इनमें डुप्लीकेट्स अलाउड है? डुप्लीकेट्स आर नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनमें डुप्लीकेट्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। क्योंकि पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है सेट जो होता है उसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होती, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसके ऑपरेशन लगाने के बाद क्यों उसमें डुप्लीकेसी होगी, ठीक है। तो अब ये एक और चीज हम नोटिस करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन को आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, जो अब हम यहाँ पे समझेंगे। आप आर इंटरसेक्शन एस तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, ये कॉमन पार्ट, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तब भी ये सेम मीनिंग देगा, देखते हैं कैसे। देखिए आर तो आपका ये पूरा है और ये एस है, दोनों में आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो अगर आर की बात करें तो ये आर क्या है, ये पूरा आर है, ठीक है। और आर माइनस एस क्या है, आर ये पूरा था और इसमें से एस वाला पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉमन पार्ट्स भी चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और जब ये वाली क्वांटिटी क्या है, बेसिकली ये वाला शेडेड रीजन, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये वाला पूरा शेडेड रीजन, और इस पूरे बड़े रीजन में से ये वाला रीजन अगर आप माइनस करोगे तो फिर से क्या बच जाएगा, यही बचेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि हम इंटरसेक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, टेकिंग 2 सेट्स एंड मल्टीप्लाई देम। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 सेट लेंगे और सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो ऑपरेशन है ये 2 टेबल्स के बीच में लगा है एंड नीड नॉट बी यूनियन कंपैटिबल। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये यूनियन कंपैटिबल होना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने कंपैटिबिलिटी की या टाइप कंपैटिबिलिटी की बात की थी किसमें, सेट ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस थे वो, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस। वहां पे टाइप कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं होगा। बट यहाँ वाले केस में आप ये नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यूनियन कंपैटिबिलिटी हो, कंपैटिबिलिटी होना यहाँ जरूरी नहीं है, और वो हम समझेंगे अब। आप देख सकते हो कि एक जो पहला टेबल है हमारा एम टेबल, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, और ये दूसरा टेबल है एसीसी अकाउंट टेबल, इसमें 2 टपल्स हैं, सॉरी 2 एट्रीब्यूट्स है। तो इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये पहली कंडीशन यहाँ फेल हो गई। नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल में सेम होने चाहिए थे टाइप कंपैटिबिलिटी में, वो यहाँ सेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 टपल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने टपल्स हैं, 2 टपल्स हैं, और यहाँ 3 एट्रीब्यूट्स है, यहाँ 2 एट्रीब्यूट्स है। तो जो आपका फाइनल टेबल होगा
उसके अंदर कितने आपके एट्रीब्यूट्स होंगे और कितने टपल्स होंगे। तो जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो तो ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, 3 इसमें थे और 2 इसमें, तो टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5 एट्रीब्यूट्स। बट इसके जो टपल्स होंगे वो हमेशा कितने होंगे, इसमें 3 टपल्स हैं और इसमें 2 टपल्स हैं, उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो अगर एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने हैं न्यू टेबल में, वो हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड टेबल के एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दीजिए तो आपके पास 5 एट्रीब्यूट हो गए। बट जो नंबर ऑफ टपल्स होंगे वो कितने होंगे, पहले टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कितने टपल्स हो गए, 6 टपल्स। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, देखिए बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, 1b1c1 इस वाली पर्टिकुलर टपल रो को आपको इससे मैप करना है। तो 1b1c1 1b1c1 किसके साथ मैप हुआ, 1a1, ठीक है। तो ये एक रो बन गई पूरी, और इसको हमें दूसरे वाले एंट्री से भी मैप करना है। तो 1b1c1 आप फिर से देखेंगे रिपीट हो गया 1b1। अच्छा, तो ये इसने तो एक्चुअली क्या किया, पहले इन सारे को फर्स्ट के साथ मैप किया, फिर दूसरे के साथ, कैसे भी कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। तो इसने क्या किया, 1b1c1 को पहले फर्स्ट एंट्री से मैप किया, फिर 2b2c2, यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 1b1c1 1b1c1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2a2, ये वाली गलती है यहाँ पे, सिंपल सी 1, ये पहले वाले उसको लेगा b1c1 और बाद में क्या है 2a2, फिर उसके बाद हम लेंगे 2b1c1 मतलब 2b2c2। ये देखिए 2b2c2 किससे पहले मैप होगा, 1a1 से, और 2b2c2 फिर किससे मैप होगा, 2a2 से। बस यहाँ पे एक गलती है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब थर्ड वाला जो है आपका, उसमें क्या होगा, 3b3c3 3b3c3 पहले मैप किसके साथ हुआ, 1a1 के साथ, और 3b3c3 फिर किसके साथ मैप हुआ, 2a2 के साथ। यानी कि पहले आपने ये रो ली और इसके साथ मैपिंग की, ठीक है, फिर आपने ये दूसरी रो ली, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैपिंग की, फिर आपने तीसरी रो ली। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे कर लीजिए कि तीनों को लेकर एक पहले से कर दीजिए, फिर तीनों को लेकर दूसरे से रो से कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले रो को दोनों रो से मैप कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ये 1b1c1 1a1 था और 1b1c1, यहाँ पे सिर्फ b1c1 आएगा और ये 2a2 होगा। तो दैट वाज द ओनली मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक, तो प्लीज करेक्ट इट। तो नंबर ऑफ टपल्स कितने हो गए, 6 हो गए इसमें, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है। अगर हमारे पास 2 टेबल है, एक रिलेशन है, एक आर और दूसरा रिलेशन है एस, इस रिलेशन में आर एट्रीब्यूट्स है और रिलेशन में एस एट्रीब्यूट है, इस रिलेशन में एन आर टपल्स है और इसमें एन एस टपल्स है। तो जो हमारा फाइनल टेबल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद, उसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, आपकी नंबर ऑफ टपल्स तो कितने, एट्रीब्यूट्स कितने हो जाएंगे, आर प्लस एस, मैंने आपको बोला था एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाएंगे, बट जो नंबर ऑफ टपल्स होंगे फाइनल टेबल में कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद, वो क्या होंगे, एन आर इंटू एन एस, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो इनका, तो आप देख सकते हैं इसमें आर एट्रीब्यूट है, इसमें एस एट्रीब्यूट है, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आउटपुट टेबल में कितने आ गए, आर प्लस एस, और अगर आप इसमें नंबर ऑफ टपल्स फाइंड आउट करेंगे तो एन आर मल्टीप्लाइड एन एस, राइट, दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पे इसने क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किया है, बट अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, देखिए अब जॉइन भी है, डिटेल में करेंगे, बट ये जो पहली क्लास है इसमें हमने बेसिकली अपने सारे ऑपरेशंस, 5 मेजर ऑपरेशंस आपने किए हैं, 6 ऑपरेशंस किए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन आपका था सिलेक्शन, सेकंड वाज प्रोजेक्शन, देन सेट ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, देन वी आल्सो स्टडीड रीनेम ऑपरेशन एंड वी आल्सो स्टडीड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हम सारे ऑपरेशंस हमने बहुत डिटेल में किए हैं, बट जॉइन के लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ जॉइन ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जॉइन एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। तो फॉर दिस लेक्चर दिस इज इनफ एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो।